Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. Thank you everyone for joining the today's session. I am Anaga, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. Today we are going to talk about the edit log feature in Tally Prime. So before moving ahead to the today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. We are into the multiple software and multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and development. We also deal with Tally Prime, SAP B1, Bitrix 24 and Skill India. So now we'll welcome the speakers. So the speakers are here. The presentation will conduct by Ms. Tejasri. So Tejasri, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the live demonstration will be done by Mr. Prashant. So Prashant, are you here? Yes, ma'am. And the resource person, Mr. Bhagwati Dandaria. Sir, are you here? Yeah, I am available. Thank you, Anu. Okay. So Tejasri and Prashant, you can start with your presentation. Okay, ma'am. Thank you. So good afternoon, all. My name is Tejasri, and I'm representing a live webinar on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Here is our Rajlakshmi family. Welcomes to all of you. So today we are know about the Tally edit log in Tally Prime. So let's begin with the first slide. Tally Prime edit log. All you need is to upgrade the Tally edit log. We will take care of the rest, and the product will ensure you are fully compliant from day one. You don't need to change anything. Continue operating the product like you always have flexibility to operate both Tally Prime and Tally Prime edit log as per your business needs. Upgrade is free with an active TSS subscription. So फर्स्ट ऑफ ऑल टैली प्राइम में एडिट लॉग कैसे यूज़ करेंगे हम वो देखेंगे. तो टैली प्राइम में आपको जस्ट टैली प्राइम एडिट लॉग ये रिलीज़ है वो आपको डाउनलोड करके टैली प्राइम में यूज़ करना है. जो भी कंप्लाइंट है वो आपके डे वन से टैली प्राइम एडिट लॉग में फुलफिल होंगे. आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. टैली प्राइम और टैली प्राइम एडिट लॉग आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो. अगर आपका TSS वैलिड होगा तो आप ये फीचर और ये जो रिलीज है टैली प्राइम एडिट लॉग 3.0.1 ये आप यूज़ कर सकते हो. टैली प्राइम एडिट लॉग में all the company's information and business transaction that you maintain in Tally Prime are safe. However, you can provide additional security by adding a username and password. Only Tally users with these credentials can access your business information. Moreover, you can create users in Tally Prime with different level of access. आपकी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन और बिजनेस ट्रांजैक्शन जो आप मेंटेन कर रहे हो टैली प्राइम में वो कम्प्लीटली सेफ है. और आप एडिशनल यूज़र सिक्योरिटी भी आप आपकी कंपनी में दे सकते हो. आप यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करके जो भी टैली यूज़र्स है वो एक्सेस कर पाएंगे आपके बिजनेस इंफॉर्मेशन को. और आप आपके टैली में टैली यूज़र्स अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे बना सकते हो और उसको एक्सेस दे सकते हो. So next slide is Tally Prime edit log capabilities. The ability to view and edit log of modification done to the transactions and masters in sequence. So आप Tally Prime edit log में आपके सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करके उनकी एक्टिविटीज़ को एक फॉर्म में देख सकते हो. जैसे कि अगर किसी ने भी आपके ट्रांजेक्शन्स को क्रिएट किया है, अल्टर किया है, उसके यूज़र नेम और डेट और टाइम के हिसाब से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी. Next is ability to filter reports to view the altered or deleted or cancelled transactions. जैसे कि टैली में एक फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है एडिट लॉग में जिसमें आपके डिलीटेड, अल्टर और कैंसल ट्रांजैक्शंस आपको एक ही फॉर्म में दिख जाएंगे. उसके साथ साथ आपको एक रिपोर्ट भी मिल जाएंगी कि किसने अल्टर किया है और कौन से डेट टाइम वाइज अल्टर किया है. So next slide is will the user will be able to disable the edit log capability in Tally Prime edit log product. The MCA notifications clearly states that accounting software with audit trail capability should not have any option to disable it. Therefore, it is an inbuilt capability available in the Tally Prime edit log product.
एज पर MCA नोटिफिकेशन, अभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो भी ऑडिट ट्रायल यूज कर रहे हैं उनको कोई भी डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो टैली प्राइम एडिट लॉग में आपको इनबिल्ट ये ऑप्शन दिया गया है जिसको आप डिसेबल नहीं कर सकते हो, एडिट लॉग के ऑप्शन को। फॉर द यूजर्स हु डू नॉट fall under the preview of MCA rule, will use Tally Prime 2.1, in which you have the option to enable the edit log feature and keep the trial activities in transactions, ledgers, stock items and groups for internal control purpose. अभी जो MCA रूल के अंडर नहीं आते हैं वो कस्टमर्स भी Tally Prime का जो एडिट लॉग का फीचर है वो यूज कर सकते हैं आपके ट्रांजेक्शन्स, लेजर्स और स्टॉक आइटम्स को स्टॉक आइटम्स की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने में आपके इंटरनल पर्पस के लिए। सो बोथ जो टैली प्राइम एडिट लॉग के अंदर आते हैं वो भी ये यूज कर सकते हैं और जो नहीं आते हैं वो भी टैली प्राइम एडिट लॉग का यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि टैली प्राइम में एडिट लॉग कैसे यूज करेंगे और उसके फीचर्स टैली में क्या क्या है। तो टैली प्राइम एडिट लॉग यूज करने के लिए आपको टैली सॉल्यूशन से जो टैली प्राइम एडिट लॉग का एक रिलीज है वो आपको डाउनलोड करना होगा, जिसमें बाय डिफॉल्ट टैली एडिट लॉग के लिए सारे फीचर्स अवेलेबल है। इनबिल्ट टैली का जो टैली एडिट लॉग के जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पे इस रिलीज में मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक कंपनी क्रिएशन से। जैसे कि मैंने ये राजलक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएट कर ली है। इसमें हम कंपनी लेवल पे एक आईडी पासवर्ड दे देंगे जो आईडी पासवर्ड एडमिन का रहेगा और सभी एडमिन को सभी के एक्सेस रहेंगे। तो मैं एक एडमिन का आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। इसके लिए आपको कंपनी अल्ट्रेशन में आना है, अल्ट के प्रेस करके कंपनी अल्टर में आना है। देन यहाँ पे F12 प्रेस करके आपको टैली वोल्ट का यूजर कंट्रोल का ऑप्शन यस करना है। इससे क्या होगा, आपको कंपनी लेवल पे एक आईडी पासवर्ड मिलेगा और इसे सारे एक्सेस रहेंगे कंपनी के। तो ये बेसिकली एडमिन का एक्सेस हो गया। यहाँ पे मैं एडमिन का एक एक्सेस क्रिएट कर लेती हूँ। और ये अनेबल टैली ऑडिट फीचर को आपको यस करना है। इससे आपके सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड रहेंगे और आपको कौन से यूजर ने क्या एंट्रीज की है वो आपको क्लियरली दिख पाएंगे। तो ये मैंने एडमिन का एक्सेस कर लिया है। अभी एडमिन के एक्सेस से कुछ एक 2-3 एंट्रीज हम पास करेंगे और एक दो मास्टर्स भी क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि अभी मैं एक रिसिप्ट की एंट्री पास करती हूँ। इसमें एक अकाउंट क्रिएट कर लेती हूँ बैंक का। और ये मैंने सेव कर दिया। और एक लेजर बना लेंगे, विशाल एंटरप्राइजेस। और एक लेजर पास बना लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक एंट्री पास कर लेती हूँ। ये मैंने एक एंट्री पास कर ली एडमिन लेवल पे और एक मैं पेमेंट का भी एंट्रीज पास कर लेती हूँ।
ये एक एंट्री हो गई। अभी हम एक और एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। स्टेशनरी एक्सपेंसेस, इसको सबसे पहले हम एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। ठीक है, तो मैंने एडमिन लेवल पे 2 एंट्रीज और एक मैंने लेजर भी क्रिएट कर लिया है। तो अभी हम देखेंगे कि इसका रिपोर्ट लेवल पे कैसे दिखेगा एडिट लॉग में। तो जैसे कि मैंने ये 2 एंट्रीज बना लिए, आपको एंट्रीज में जाना है और यहाँ पे कंट्रोल ओ में रिलेटेड रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, वहाँ पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको एडिट लॉग में अल्ट क्यू का ऑप्शन रहेगा और यहाँ पे आपको एक्टिविटीज वाइज दिखेगा। जैसे कि मैंने एडमिन लेवल पे क्रिएट किया है और उसका डेट और टाइम भी यहाँ पे मेंशन हो गया है। जैसे ही इसको एंटर करेंगे आपको एक कंपैरिजन वाइज दिखेगा डिफरेंस। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में मैंने क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी कि मैंने क्या क्या क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये हो गया एडमिन लेवल पे। अगर किसी ने इसको चेंजेस कर दिया तो वो कैसे दिखेगा वो भी मैं बताती हूँ। जैसे कि बहुत सारे कंपनीज में बहुत सारे यूजर्स काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे यूजर बना देती हूँ। मेरे नाम से एक यूजर बना देती हूँ और उसी यूजर से मैं कंपनी ओपन करती हूँ। तो अभी यही यूजर से मैं कुछ चेंजेस करती हूँ। जो हमने एडमिन ने जो एंट्रीज पास की थी उसी एंट्रीज को हम कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे कि पेमेंट में जो अमाउंट थी वो मैं 100 से 200 कर देती हूँ और यहाँ पे मैं नरेशन भी चेंज कर देती हूँ, कैश पेड। ठीक है, और यहाँ पे रिसिप्ट में भी मैं अमाउंट चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे न्यू रेफरेंस देती हूँ और नरेशन भी चेंज करती हूँ। तो ये चेंजेस हमें फिर से देखने के लिए फिर से आपको वही एंट्री में आना है और कंट्रोल ओ प्रेस करना है। यहाँ पे अल्ट क्यू प्रेस करके आपको एक्टिविटीज दिख जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले एडमिन ने क्रिएट किया था डेट और टाइम वाइज, वहाँ पे दिखेगा और मैंने अल्टर किया है, तो इसको आप एंटर करेंगे और यहाँ पे दिखेगा कि क्या अल्टर हुआ है। जैसे कि यहाँ पे पहले था 100 रुपीज अमाउंट थी, मैंने 200 कर दिया है। यहाँ पे एक्टिविटी अल्टर में दिखाएगा और जो अल्टर किया है वो हाईलाइट दिखेगा आपको रेड मार्क में। जैसे कि नरेशन कुछ भी नहीं था, पहले मैंने कैश पेड ये नरेशन डाला है। उसके बाद में अमाउंट नहीं थी 100 रुपीज थी, मैंने 200 कर दिया है। तो जो भी आप चेंजेस करोगे एडिट लॉग वर्जन में आपको इसी फॉर्मेट में शो करेगा। तो ये हो गया वाउचर लेवल पे। आप ग्रुप लेवल पे और लेजर्स में मास्टर्स लेवल पे भी ये देख सकते हो। जैसे कि अभी जो मैंने एक लेजर क्रिएट किया था उसको फिर से हम अल्टर करेंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस का। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाला था, मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देती हूँ। और उसको यहाँ पे कंट्रोल ओ करके रिलेटेड रिपोर्ट्स में फिर से चेक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि क्रिएटेड है, एडमिन ने क्रिएट किया है और मैंने अल्टर किया है। जो भी अल्टर हुआ है वो फिर से आपको रेड मार्क में दिखाई देगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था पहले और अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने कर दिया है। तो इस लेवल पे आप देख सकते हो एडिट लॉग का। और एक ऑप्शन है कि आप जैसे कि अभी मैंने डे बुक में गई, जो भी एंट्रीज मैंने पास की है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बेसिस ऑफ वैल्यूज।
यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कि आपको रिपोर्ट कैसे चाहिए, जैसे कि अल्टर वाउचर्स का एक आप फिल्टर लगा के देख सकते हो। अल्टर वाउचर्स में अगर आपको बस अल्टर वाउचर देखना है तो आप यहाँ पे प्रेस करके बस आपके अल्टर वाउचर्स दिखेंगे आपको। उसके बाद में अगर आपको नॉन अल्टर वाउचर्स देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हो, और ऑल वाउचर्स में आपको सभी वाउचर्स दिखेंगे जो अल्टर हुए हैं और नॉन अल्टर्ड है। जैसे अगर मैंने नॉन अल्टर में देखा तो कोई भी वाउचर ऐसा नहीं है कि जिसको मैंने अल्टर नहीं किया है। तो ये भी आप रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में अगर कोई एंट्री कोई भी यूजर डिलीट करता है तो वो भी आपको दिख जाएगा। जैसे कि मैंने अभी ये पेमेंट की एंट्री डिलीट कर दी, तो वो एंट्रीज भी आपको यहाँ पे कंट्रोल बी में बेसिस ऑफ वैल्यूज में इंक्लूड डिलीटेड वाउचर्स का ऑप्शन यस करके यहाँ पे आपको दिखेगी कि कौन सी एंट्री डिलीट की है और कब डिलीट की है। जैसे कि क्रिएट मैंने एडमिन ने की थी, अल्टर तेजस्वी ने किया था और डिलीट भी तेजस्वी ने किया है, और टाइमिंग वाइज भी आपको दिखेगा। तो पहले वो एंट्री क्या थी और अभी उसको डिलीट कर दिया है तो वो आपको रिपोर्ट यहाँ पे शो करेगा। तो ये था आपको आपका टैली प्राइम एडिट लॉग का फीचर टैली प्राइम में इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। सो दैट्स इट। Thank you, Tejasvi. So it's over to you, Bhagwati sir, for the today's overview session. Yeah. Thank you, Anga. Thank you, team. So, overall idea is the edit law. जैसा कि आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ROC में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 1 अप्रैल से all the private limited company have to maintain, limited and private limited company have to maintain the edit law. आपको वही सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करना है। आपको अपना अकाउंटिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट पूरा सॉफ्टवेयर के थ्रू करना है, और वो सॉफ्टवेयर में एडिट लॉग फीचर होना चाहिए ताकि आप कोई भी ट्रांजेक्शन पास कर रहे हो, उस ट्रांजेक्शन को आप जितनी बार भी एडिट करोगे या आप उसको डिलीट करोगे, everything will be recorded in that particular software. Otherwise, आपका transaction valid नहीं होना चाहिए। Maybe there is some clauses, so that is a different part. So in terms of the software में जो capability होनी चाहिए edit log, तो Tally ने यहाँ 2 टाइप के सॉफ्टवेयर बनाए। सेम रिलीज में Tally हमेशा 2 सॉफ्टवेयर रिलीज कर रही है, 2 EXE रिलीज कर रही है। One is a edit log release, second is a plain release. तो जिनको ऊपर एडिट लॉग फीचर लागू होता है, लाइक प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड कंसर्न लिमिटेड कंपनीज, जिनको ऊपर ये लागू है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ, उनको एडिट लॉग फीचर वाला टैली यूज करना है ताकि आप अपने एडिट लॉग को खुद से कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन क्रिएट करेंगे, अल्टर करेंगे, मल्टीपल टाइम अल्टर करेंगे, और अगर मान लीजिए आपने डिलीट कर दिया, ये सभी रिपोर्टिंग वहां पर मिलेगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ROC कंपनी एक्ट के नियम के अनुसार उनको चाहिए। तो राइट नाउ अभी चूंकि ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो इसकी रिपोर्टिंग डेफिनेटली अगले फाइनेंशियल ईयर में होने वाली है। जो असेसमेंट होगा तो उसमें वो आपसे रिपोर्ट मांगेगी, मे बी दे विल ऑडिट योर सॉफ्टवेयर ऑल्सो कि आपने ऑडिट लॉग वाला सॉफ्टवेयर यूज किया है नहीं किया। So this is a very important feature for the audit purpose. So you have no need to do any other things. Just you can download edit log Tally, use that. All feature will automatically. You can just enable the edit log and you can that enable that option is already enabled because आप उसको disable भी नहीं कर पाते, और you all transaction will be recorded as per the government law. So this is the idea of this software. So आप जरूर इसको यूटिलाइज करें। अगर आपके ऊपर ये नियम लागू है तो यू कैन डाउनलोड दैट एडिट लॉग टैली, यूटिलाइज दैट। इसके दूसरे एडवांटेज भी हैं, आप अपने इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए भी आप उसको बड़े अच्छे ढंग से देख सकते हैं कि कौन से पर्सन ने कौन सी ट्रांजेक्शन की, कब एडिट की, कब अल्टर की, क्या डिलीट किया, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। तो ये आपके इंटरनल पर्पस में भी काफी अच्छा यूज हो सकता है। तो आई फील यू कैन
use this feature. This is a very important and a very useful feature for your organization for internal and government purpose. And इसके लिए आपको अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद आवर अकाउंट मैनेजर जो आपके साथ राजलक्ष्मी के साथ कनेक्टेड है. They will help you out to do, implement that feature. And if you are in the annual maintenance contract, definitely this will by default you can connect and you can get the benefits of this particular feature from our side. But इसके लिए Tally का TSS जो Tally सॉफ्टवेयर सर्विसेज है वो वैलिड होना चाहिए. सो एक बार वो चेक कर लें और अगर नहीं वैलिड है तो अपडेट करें. और अगर आप ई इमेजिंग एप्लीकेबल है तो डेफिनेटली आपको TSS तो वैलिड होगा ही. तो आप इजी गोइंग आप इस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर का और हेजल पे काम कर सकते हैं. जस्ट आई वांट टू अपडेट लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन in this August, like in terms of the GST. So everybody is aware about the GST for the first of the August. E-invoicing is applicable for the 5 crore turnover. So many of the customers are using Tally Prime for using the 5 crore turnover e-invoicing. They are very successfully using the e-invoicing, and many of the customers definitely we are going to receiving lot of calls for the implementation and training for the e-invoicing. So Tally is a very big and just they are playing the big role in the India market in terms of the e-invoicing successfully implementation. Within a half an hour, any of the GST registered customer can implement e-invoicing in the Tally Prime. So this is happened because of the Tally simplicity. So same way. In terms, another things we want to announce just in the terms of the August, we are for all of the customer we are offering the good offer in terms of the annual maintenance contract. So customer can use the Tally in very smoother way, and they can use all the features. We are providing all the implementation of the e-invoicing e-way fields like Tally audit log. That is just we are doing the demo today. We already done the demo earlier. Like today we also want to do this demo according to the market demand. So all these features we are implementing in our annual maintenance contract services. So we are offering that services in a very minimal cost. So anyone can afford this cost, and they can use Tally Prime very smoother, and they can get the benefit in his organization in terms of the many of the MIS, in terms of the GST, in terms of the TDS, in terms of the employee payrolls. So lot of things are available in the Tally Prime. And upcoming आने वाले समय में जैसा कि आप देख रहे हैं Tally Prime में day to day they are in the connecting environment. So you can utilize the Tally, and there is a lot of features are coming. So उसको भी काफी implementation definitely आपको लगेंगे. So you can get the AMC in the very minimum cost. You can take the advantage for the whole years. So just you can run your business smoothly. We are here for your support, and you can run your organization in the Tally Prime and get the all reports on the timely. So this is a idea of our animal maintenance contract of this month offer. And we are also providing one additional services that called Tally on Cloud services. So Tally on Cloud services, many of the customers are using Tally on Cloud services. That time we are hosting your Tally on our hosted cloud services data center. You can use the Tally in the multiple locations, any of the locations. Just you are logging the Gmail account in the email. So you can use your Tally in any of the locations. So any of the PC, you have no need to carry your laptop and go in your computer desktop or things like that. You can use Tally in the multiple locations anytime, 24/7. Just like for example, in a day you are just dispatching the materials. End of the day you have generated the e-way bill or e-invoicing. So you can do this from your home or anywhere in the world.
So this is a very great advantage of the Tally on Cloud. So you can think on it, you can take the demo session, you can connect with our team so they can help. That's it from my side. Anga is over to you. Thank you so much, sir. So this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to our social media. Thank you everyone for today's session joining. Thank you everyone. Thank you everyone. See you soon in the next session.